Okay, fine. It's audible now. Okay. So once again, a very good afternoon, dear students. Is it audible to all? Okay, Yes, ma'am. fine. So what is exactly linked list is? Linked list means it is what, no doubt, linked list is a linear data structure. We have seen that concept, that the two types of data structure, that is linear and non-linear. After array, the linked list name comes. Okay. So how it is the linear data structure that we have to see. Okay. So basically it is a linear data structure, and here node make of linked list. Okay. The second line says nodes makes of linked list. So what exactly node is? Just concentrate, and this diagram is highlighted in white color. You can easily understand that. Just the node or data connected with each other. Okay, ये जो data है, we are going to store the data in one part, and second part is representation of linked list. Okay, so what exactly it is? So linked list is what? There is a common linked list means node connected via linked is called as linked list. Okay, and node are structures made up of data and pointer to another node. Okay, so you can see easily, ये जो first वाला box दिख रहा है, इसमें दो part है. First part is data part, and second part is address of next node. Okay, so this node combination of all nodes or collection of all nodes connected via link or pointer is called as a linked list. Okay, जैसे हम लोग फॉर एग्जांपल बोल सकते हैं, जो रेलवे इंजन के डब्बे बॉक्स बनते हैं. ओके, एक के बाद एक, लाइक वाइज द लिंक लिस्ट स्ट्रक्चर कम्स. ओके, सो जैसे रेलवे इंजन में जो रेलवे का जो इंजन होता है, दिस इज अ हेड. ओके, तो रेलवे का इंजन पूरे सारे डब्बे को हैंडल करता है. सिमिलरली हियर द वन हेड पॉइंटर, देयर इज हेड ऑलवेज देयर, हेड कभी हिलता नहीं है, हेड उसी जगह पे रहेगा, और ऑल एलिमेंट्स एक दूसरे से कनेक्टेड रहे. Okay, so this is the structure of what linked list is. Okay, so usually this is called as pointer, and pointer is called as the next. We can say that the pointer title is next or link. Okay, so basically what is exactly linked list is? Linked list is a collection of nodes connected via pointer is called as linked list. Okay, I hope everyone clear what is the structure. Again I am explaining here the structure is क्या, सबने दिमाग में रखना है. जैसे रेलवे इंजन होता है, एक डब्बा दूसरे डब्बे से कनेक्टेड होता है, दूसरा डब्बा तीसरे डब्बे से कनेक्टेड होता है, लाइक वाइज द स्ट्रक्चर गोज ऑन. ओके, एंड देयर इज वन इंपॉर्टेंट पार्ट, फर्स्ट वन इज हेड, और लास्ट वाला जो है लिंक का पार्ट, दैट इज नल. So we'll see one by one. Okay, so basically the difference between arrays and linked list, after completing this point, okay, after the finishing the explanation of linked list, then we'll focus on this point. Now I'm skipping this slide. Okay, it's not a whole concept is cleared of linked list. That's why we are clearing this point after finishing the linked list concept. Fine. So basically there are two types: singly linked list and doubly linked list. Okay. Okay. So basic two types, but actually there are three types: singly linked list, doubly linked list, and circular linked list also. Okay. Again, circular having circular singly and circular doubly also. Okay. So what exactly the singly? This structure that we have seen. Okay. This structure actually a singly linked list. ये देखो, सिंगली लिंक लिस्ट में सिंगल पॉइंटर रहेगा. जो आपको दिख रहा है 5 डायग्राम के अंदर, सब लोगों ने फोकस करना है. जो फर्स्ट बॉक्स है, द फर्स्ट बॉक्स इज डेटा, एंड नेक्स्ट वन व्हाट, एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड. मतलब फर्स्ट जो बॉक्स रहेगा वो क्या रहेगा, उसमें डेटा स्टोर रहेगा. मतलब ये एक वन नोड है. वी कैन हाईलाइट इट. ओके, so we are going to highlight this point. Just concentrate here. This 5 you represent, this is called as what, data. Means ये पूरा वाला जो structure है वो node है. This box is called as what, node. We can say that this is called as node. Okay, इसको हम क्या बोलेंगे, this is our node. Okay, and in the node having two part, first one data part and next one address of next node. मतलब फर्स्ट पार्ट में हम डेटा स्टोर करेंगे, जैसे हम लोग लिंक लिस्ट में स्टोर करते हैं 5 10 वट एवर इंटीजर कैरेक्टर फ्लोट वैल्यूज, एंड द नेक्स्ट पार्ट इज एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड. ओके, that we are going to see. Actually this is a general diagram of linked list, but we are going to focus on singly linked list now. ओके, सो अभी पहले हम लोग इस पे फोकस करने वाले हैं
the singly linked list. Okay, now we focus that part. Okay, so first of all, singly linked list. Yes, so in singly linked list, each node only one link path. Yes, in structure there is only one link and one the node is having two parts. First one डेटा पार्ट एंड सेकंड वन एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड, मतलब नेक्स्ट नोड कहाँ पे स्टोर किया उसका एड्रेस उसमें स्टोर होगा. ओके, एंड ईच लिंक पार्ट कंटेन द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड इन द लिस्ट. ओके, अगेन आई एम रिपीटिंग द नोड लिंक लिस्ट. आई एम clearing again. Linked list means collection of nodes connected via pointer is called as linked list. And what about singly linked list? Singly linked list means the node having two parts. First part is data part and second part is link part, and there is only one link part, and each link part contains the address of next node in the list. Okay, and the link part of the last node contains null, means हमें कहीं तो भी उसको terminate करना पड़ेगा, मतलब continuous हम लोग नोड को नहीं बना सकते. एंडिंग में वो क्या होगा, कब हमारी लिंक खत्म होगी, then the link part of the last node contains null, that value which signifies the end of the node. Okay, so now we see this structure. Okay, so here is what the semantic representation of singly linked list. Just concentrate here. Okay, so this is what first part is here. You can easily understand that, that is header pointer. Okay, now I hope everyone clear this concept. Okay, just concentrate here in singly linked list. Okay, singly linked list, here is header pointer or we can say that head. Okay, एक head pointer रहेगा. Okay, ये head है, मतलब लिंक लिस्ट में हमेशा जो पहला वाला बॉक्स होता है, फर्स्ट वाला डब्बा होता है, वो क्या होता है, हेडर. दिस इज वन हेडर. ओके, ये हेडर है और बाकी के जो बॉक्सेस है उसको कनेक्टेड है, और लास्ट वाला हमेशा क्या रहेगा, null रहेगा. Means you can say that the there is no node connected after that. Okay, means each node contains a value data and the pointer means to the next node in the list. Okay, so I hope everyone clear. This is the part is for data part. इसको क्या बोलेंगे हम, नोड के दो पार्ट्स है, फर्स्ट वन डेटा एंड सेकंड वन वॉज एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड. यहाँ पे हम लिंक को क्या बोलेंगे, एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड, मतलब नेक्स्ट नोड का एड्रेस कहाँ पे है वो बताएगा. दैट्स व्हाई वी हैव सीन द पॉइंटर. एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड मतलब क्या कंसेप्ट होगा, एनीबडी कैन टेल मी व्हाट इज द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड. एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड मीन्स वी आर गोइंग टू स्टोर एड्रेस. फॉर एग्जाम्पल, again we are clearing this part here. For example, just concentrate. Suppose ये फर्स्ट वाला बॉक्स कौन से लोकेशन पे है, 1000 लोकेशन पे स्टोर है. ओके, ये 1000 लोकेशन पे है. ओके, सो कैरेक्टर को कितना बाइट रिक्वायर्ड है, लेट से ये अपना सिंगल नोड है पहला वाला बॉक्स, जैसे मैंने बोला रेलवे इंजन का फर्स्ट डब्बा, दिस इज हेड. ओके, ये हेड है. फाइन, सो ये फर्स्ट वाला जो बॉक्स है ए के ए कैरेक्टर मीन्स 1 बाइट इज रिक्वायर्ड, एंड पॉइंटर सेकंड जो डब्बा है ये क्या है, डेटा है, और ये क्या है, एड्रेस है. एड्रेस मीन्स वी कैन से दैट हियर पॉइंटर. in morning session we have seen that what is the pointer is. Okay, so pointer क्या होल्ड करता है, एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड. तो यहाँ पे मान लो ये 1000 लोकेशन पे है, 1001 पे 1 ए स्टोर होगा, 1000 1 2 3 3 पे ये स्टोर होगा. इसका मतलब है नेक्स्ट लोकेशन कहाँ पे जाएगा, 1004. इसका मतलब है सपोज ये नेक्स्ट बॉक्स है वो 1004 लोकेशन पे स्टोर है पूरा बॉक्स, तो उसका लोकेशन कहाँ पे होल्ड करेगा, ये बॉक्स में, मतलब ये 1004 कहाँ जाएगा, यहाँ पे. I hope everyone agree. Means it holds the address of next node. और address hold कौन करता है? Only the pointer variable. Okay. That's why the linked list concept is a dynamic memory allocation. It requires pointer. And each node contains a value, or we can say that data, and the next field is pointer to the next node in the list. Okay. And always remember that header plays the major role. Header pointer which points at the first node in the list. ऑलवेज रिमेम्बर दैट अपने जो ह्यूमन बॉडी है उसमें भी हेड का मेन रोल होता है. ओके, हम लोग कहीं भी जाते हैं, वी आर नॉट चेंजिंग द पोजीशन ऑफ हेड. हम लोग हैंड्स के मूवमेंट्स करते हैं, लेग्स के मूवमेंट्स करते हैं, बट वी आर नॉट चेंजिंग द हेड पोजीशन. ऐसे नहीं होता है कि चलो मैडम मेरा सिर बहुत हेवी हो गया आपका लेक्चर सुन के, अभी मैं निकाल के रखता. इट्स नॉट लाइक दैट. हेड कभी हम लोग जगह से नहीं हिलाते.
Similarly here head is a very important part. हेड हमेशा वहीं पे ही पॉइंट रहेगा. जैसे मैंने सेकंड एग्जांपल दिया था रेलवे इंजन का. रेलवे इंजन का रेलवे का इंजन बहुत इंपॉर्टेंट है. उसका फर्स्ट डब्बा, उसका ट्रैकिंग प्रॉपर रहेगा तो ही आगे का एग्जीक्यूशन प्रॉपर होगा. सिमिलरली हियर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज द फर्स्ट पार्ट हेड. हेड ही पूरे लिंक लिस्ट को हैंडल करता है. ओके, सो आई होप एवरीवन एग्री विद दिस. What is the singly linked list now? Yes, I hope everyone clear that point. Yes, all of you. What exactly the linked list is? Okay, so I hope everyone clear the structure. What are the basic operations of linked list? That is creating a list, then inserting element into a list. After that, we can delete the element from the list and how to search the element from the list. Okay, so we are going to see one by one operation. Okay, basically how to create a node. Okay, this is very important statement. Okay, so how to create a node? Creating a node basically. Okay, so here is just concentrate here how to create the node. That is one important structure. Okay, here I'm drawing one structure, then you can easily understand that. Okay, so linked list का node concept बहुत important है. So how we are going to represent that node here? Okay, so we can highlight here. This is what one structure that I want to show here. Okay, yes, this is what that I am drawing here. This is what node. Okay, we can say that this is node. Okay, इसको हम क्या बोलेंगे? ये node है. And node के दो parts है. First one is what? Data part, and second one what? Address of next node. Okay, address of next node मतलब क्या? This is a pointer variable. ये क्या हो गया? Pointer. ओके, और ये क्या है? हमारा डेटा. लेट्स से यहाँ पे मैंने 10 वैल्यू स्टोर की. ओके, अभी व्हाट इज हाउ टू क्रिएटिंग द नोड? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नोड. अभी ये जो फर्स्ट बॉक्स है, देखो लिंक लिस्ट हमें बनानी है, सो हमें पहले इंजन बनाना पड़ेगा. मीन्स अपना रेलवे इंजन का, रेलवे का जैसे इंजन होता है वैसे. सो स्टार्टिंग का नोड हमें क्रिएट करना पड़ेगा. तो स्टार्टिंग का नोड नोड क्रिएट करना है मतलब क्या करना है? Node creation means we have to allocate that memory to particular variable at a run time. मतलब run time मुझे लग रहा है कि मुझे 100 वैल्यू स्टोर करने हैं, तो ये पॉसिबल है सिर्फ लिंक लिस्ट की वजह से. इन एरे इट्स नॉट पॉसिबल. एरे में कैसा था? लेट्स से मैंने इंटीजर a of 5 किया, सो मैं कितने वेरिएबल स्टोर कर सकती हूँ एरे में? ओनली 5 वेरिएबल्स, नॉट मोर देन दैट. ओके, तो एरे में पॉसिबल था क्या? वो नहीं था, क्योंकि मैं 5 में साइज देती हूँ तो मैं आई कैन नॉट एक्सीड एट रन टाइम दैट साइज. बट इन लिंक लिस्ट आई एम क्रिएटिंग अ मेमोरी, और आई एम अलोकेटिंग द वेरिएबल मेमोरी एट अ रन टाइम. मतलब मुझे लग रहा है 100 वैल्यूज ऐड करने तो मैं कर सकती हूँ. दैट्स व्हाई द टाइटल सेज दैट क्रिएटिंग अ नोड. सो एवरी स्टेटमेंट इज वेरी मीनिंगफुल इन लिंक लिस्ट, इसलिए उसको बोला जाता है क्रिएटिंग अ नोड. ओके, सो अगेन आई एम रिपीटिंग हियर, दिस इज व्हाट स्ट्रक्चर ऑफ नोड. अब ये नोड का स्ट्रक्चर बनाना है. लिंक लिस्ट में इस डब्बे को क्या बोला जाता है? दैट इज नोड ओनली. ओके, इसको क्या बोलेंगे हम? दिस इज नोड. ओके, एंड उसका ही टेक्निकल पार्ट में हम लोग नोड को रिप्रेजेंट किया. ओके, सो व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ दैट नोड? Okay, so this is a simple node linked list. Structure of node, what is that? We have to represent in C language only. Okay, so initially how to create the structure? So basically when we are creating the structure, struct keyword is required, and the name of the structure, that is node. Okay, and it is having two parts. First one, yes, integer data. Okay, मतलब पहला वाला पार्ट क्या हुआ? डेटा. क्योंकि always remember that in single linked list there is two part. First one, there is collection of nodes connected via pointer is called as linked list. ये समझ में आया? बॉक्स बॉक्स हम लोग बना के उसको लिंक कर रहे हैं यूजिंग पॉइंटर. ओके, सेकेंड वन, द नोड इज हैविंग टू पार्ट. फर्स्ट वन डेटा पार्ट, दैट इज आई 10 जो मैंने लिखा मतलब ये अपना फर्स्ट डेटा पार्ट. ओके, एंड सेकेंड द नेक्स्ट मीन्स व्हाट? इट इज अ पॉइंटर. क्लियर टू एवरीवन? ये जो नेक्स्ट किसको पॉइंट कर रहा है? पॉइंटर. नेक्स्ट मतलब दिस इज अ पॉइंटर नेम. जैसे हम लोग पॉइंटर को P Q R S दे रहे थे मॉर्निंग में, सिमिलरली ये हम लोग क्या दे रहे हैं उसको? नेक्स्ट. नेक्स्ट मतलब वो नेक्स्ट को पॉइंट कर रहे हैं. सिंपल वेरिएबल नेम है. ओके, ओके, सो आई होप एवरीवन क्लियर. उसका स्ट्रक्चर कैसे बना? स्ट्रक्ट कीवर्ड, नोड, एंड उसके अंदर हमने लिखा इंटीजर डेटा. यस,
पहला वाला पार्ट जो है वो इंटीजर डेटा है और सेकंड वन है स्ट्रक्ट नोड स्टार नेक्स्ट। स्टार मतलब क्या, स्टार का मीनिंग क्या हो गया यहाँ पे, स्टार मीन्स पॉइंटर एंड नेक्स्ट मीन्स वो पॉइंटर का वेरिएबल है। ओके, आई होप एवरीवन एग्री विद दिस। ओके, एंड द स्ट्रक्ट नोड, अभी ये देखो जैसे हमने देखा है पॉइंटर का टाइप, जो वेरिएबल का टाइप है, वी हैव सीन दैट जो वेरिएबल का टाइप है वही पॉइंटर टाइप के वेरिएबल का होना चाहिए। ओके, बट हियर द टाइप data type of that next pointer is struct node. Why? This is the question comes, why it is struct node? Because always remember that ये जो next है, अभी ये जो पॉइंटर है वो किसको होल्ड करता है, इट होल्ड द बॉक्स। ओके, पूरे बॉक्स के एड्रेस को होल्ड कर रहा है। इट्स नॉट लाइक दैट कि मैडम डेटा का एड्रेस 1000 रहेगा और उसके नेक्स्ट का जो है वो 1000, नेक्स्ट का जो भी है वो 1002 रहेगा। इट्स नॉट लाइक दैट। ओके, सो इट होल्ड्स, ये जो नेक्स्ट है, ये नेक्स्ट पॉइंटर जो भी है, आई एम राइटिंग हियर एन, एन मीन्स नेक्स्ट होल्ड द एड्रेस ऑफ होल नोड का एड्रेस होल्ड करता है। इसका मतलब है पूरा बॉक्स का जो डेटा टाइप है वही डेटा टाइप उस पॉइंटर का होना चाहिए, इसीलिए नेक्स्ट पॉइंटर का डेटा टाइप क्या है, स्ट्रक्ट नोड। I hope everyone clear this point. Okay, so it's clear now everyone. Yes, again I am asking some question. Okay, fine. Now this is our first box. The box, first box को हम technical language में क्या बोलते हैं, node. So this is my first node. Okay, first node always, what is the title of first node is, that is head. हमेशा लिंक लिस्ट का फर्स्ट जो डब्बा होता है वो हेड होता है। जैसे ह्यूमन बॉडी का मेन पार्ट कौन हैंडल करता है, हु इज द फर्स्ट लीडर ऑफ आवर ह्यूमन बॉडी, दैट इज ब्रेन, और वी कैन से दैट हेड। ओके, सो हेड बहुत इंपॉर्टेंट मेन रोल प्ले करता है, वो हमेशा उसी जगह पे होता है। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ। हेड ऑल्सो वन टाइप ऑफ पॉइंटर, पॉइंटर मतलब यहाँ पे स्टार आएगा। क्लियर, फाइन। नाउ in linked list having two part, first one was data part and second one address of next node. Okay, so data part मतलब ये हम लोग उसको टेक्निकल लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, कोड फॉर्मेट में, दैट इज स्ट्रक्ट, स्ट्रक्चर बनाना है नोड का, इसलिए स्ट्रक्ट, नेम ऑफ द स्ट्रक्चर दैट इज नोड, इन विच फर्स्ट पार्ट इज integer type of data we are going to store, that we can say here I am going to store 10. Okay, then struct node star next. अभी नेक्स्ट जो भी है, हमेशा नेक्स्ट इज अ पॉइंटर टाइप ऑफ वेरिएबल, इट होल्ड द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड, मतलब यहाँ पे क्या है, स्टार आएगा। ओके, दिस इज द नेम ऑफ वेरिएबल। ओके, माय क्वेश्चन इज दैट वी हैव सीन दैट डेटा जो वेरिएबल का एड्रेस होल्ड कर रहा है उसका ही टाइप पॉइंटर का टाइप से सेम होना चाहिए। ओके, बट यहाँ पे पॉइंटर का टाइप क्या है, स्ट्रक्ट नोड स्टार। व्हाई? ओके, बिकॉज ये जो नेक्स्ट जो भी है, ये देखो ये पूरे नेक्स्ट नोड को होल्ड कर रहा है। ओके, इसका मतलब है ये सिर्फ डेटा पार्ट को या एड्रेस पार्ट को होल्ड नहीं कर रहा है, पूरे नोड को होल्ड कर रहा है। और पूरे नोड का कॉम्बिनेशन क्या है, डेटा पार्ट एंड एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड। सपोज मैं यहाँ पे 10 स्टोर कर रही हूँ, यहाँ पे 20 स्टोर कर रही हूँ, मतलब डेटा पार्ट इंटीजर के लिए कितने बाइट्स एलोकेट होंगे, 2 बाइट्स, and always remember that pointer also holds 2 bytes, total 4 bytes। इसका मतलब है ये सपोज 1000 लोकेशन पे है, तो नेक्स्ट वाला सपोज 1004 लोकेशन पे है। ओके, सो ये पूरे नोड को होल्ड कर रहा है, इसका मतलब है स्ट्रक्चर का जो टाइप है वही नेक्स्ट पॉइंटर का होना चाहिए, दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग स्ट्रक्ट नोड स्टार नेक्स्ट। पूरे नोड को होल्ड कर रहा है, मतलब पूरे नोड के एड्रेस को होल्ड कर रहा है। तो पूरा नोड का जो टाइप है, मतलब जो स्ट्रक्चर का टाइप है, नोड को कौन बना रहा है, स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर का जो टाइप है वही उस नोड का होना चाहिए, दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग स्ट्रक्ट नोड स्टार नेक्स्ट। ओके, सो आई होप एवरीवन क्लियर दिस पॉइंट, क्लियर टू एवरीवन हाउ दिस इज द स्ट्रक्चर वी आर क्रिएटिंग द लिंक लिस्ट। मतलब उसमें दो पार्ट है, डेटा पार्ट एंड एड्रेस ऑफ next node, and the structure object we can say the head. Okay, we can declaring here, right? head कभी चेंज नहीं होगा, head कभी उसकी जगह से नहीं हिलेगा। head कभी हिलता है क्या, कभी ऐसे हुआ है क्या, you are getting too much stressed and now मैडम मैं अभी head निकाल के रखता हूँ फिर काम करता हूँ, it's not like that।
So head should be always in pause position and always in lie position. Clear? I hope everyone clear the concept of creating of node is. Okay. Now it's clear to all. Fine. Okay. So next, yes, this is what creation of node. Okay. Abhi we have to create the node here. You can easily understand here. Okay. तो ये जो अपना first node है, इसको create करना है. Create करना मतलब क्या? We have to allocate the memory dynamically. अब तक हम लोगों ने array में element store किया था. प्रोग्राम में हम लोग फिक्स कर रहे थे साइज कि कितने एलिमेंट स्टोर करने 5, कितने एलिमेंट स्टोर करने 10, कितने स्टोर करने 15. But here it's not like that. We can store 100 elements at the runtime. Okay, that's why the title of that function or concept is called as create node. Okay, so now we focused on the create node concept. Okay, just concentrate here. Create node करना है मतलब हमें क्या करना है? Initially before that we have to make empty box. Okay, so अभी हमने देखा ये empty box कैसे बनेगा. Okay, नो डाउट स्ट्रक्चर ने तो बोला कि कितनी साइज रहेगी. अब फर्स्ट वाला डेटा पार्ट रहेगा, सेकंड वाला एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड रहेगा, बट उसको रन टाइम क्रिएट कौन करेगा? इन सी प्लस प्लस विच ऑपरेटर और विच कीवर्ड is used to create allocate the memory dynamically in C++? Can anybody answer me this question? C++, you have gone through all the concepts of C++. You tell me how to allocate the memory dynamically in C++. C++ में हम लोग न्यू ऑपरेटर से मेमोरी अलोकेट करते हैं. किससे? न्यू ऑपरेटर. ओके, सो न्यू ऑपरेटर से मेमोरी अलोकेट करते हैं. बट वी आर गोइंग टू सी इन सी लैंग्वेज हाउ टू अलोकेट द मेमोरी. मतलब रन टाइम. अभी देखो रन टाइम हमें ये बॉक्स बनाना है. प्रीवियस स्लाइड में हमने क्या देखा? जस्ट स्ट्रक्चर ऑफ नोड कि क्या होगा. स्ट्रक्ट कीवर्ड, नेम ऑफ द स्ट्रक्चर, डेटा पार्ट एंड एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड, इतना हमने डिक्लेयर किया. बट एक्चुअल ये डब्बा क्रिएशन का काम कौन करेगा? क्रिएट नोड फंक्शन. सो दैट्स व्हाई वी फोकसिंग ऑन द create node function. Okay, so what is the syntax of it? Just concentrate here. Fine. So here just concentrate. यहाँ पे सबसे important काम है malloc function. Malloc function in C language is used to create the allocate the memory dynamically. Okay, ये malloc जो function है वो रन टाइम मेमोरी allocate करता है. मतलब रन टाइम हम लोग नोड को ऐड कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं. ओके, तो ये malloc फंक्शन है. सो malloc फंक्शन का जो रिटर्न सिंटैक्स है वो क्या है? void malloc doesn't return anything. malloc फंक्शन रिटर्न नहीं कर रहा है. void malloc कीवर्ड, then the next one is malloc कीवर्ड है. after that the size of operator and name of these two parameters are important that you can see here. malloc कीवर्ड, साइज ऑफ मतलब malloc फंक्शन क्या करेगा? कितने साइज का बॉक्स आपको क्रिएट करना है, कितनी साइज का डब्बा क्रिएट करना है वो बताएगा स्ट्रक्ट नोड. इसका मतलब है जितने स्ट्रक्चर का साइज है, जो कितने साइज का बॉक्स है मेरा, टोटल 4 बाइट. लेट्स से इंटीजर है और एड्रेस भी कितने बाइट अलोकेट करता है? पॉइंटर 2 बाइट्स, मतलब टोटल 4 बाइट्स. तो कितनी साइज अलोकेट करनी है? साइज का काम कौन करेगा? स्ट्रक्चर. मैलॉक बोल रहा है रन टाइम 4 बाइट का बॉक्स बनाना है. किसमें? न्यू नोड नाम के वेरिएबल में. ओके, बट न्यू नोड नाम का जो वेरिएबल है वो भी पॉइंटर होना चाहिए. दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग स्टार ऑपरेटर. ओके, एंड अगेन जो वेरिएबल को हम लोग मेमोरी अलोकेट कर रहे हैं रन टाइम यूजिंग malloc फंक्शन, उसका भी टाइप क्या होना चाहिए? स्ट्रक्चर का टाइप होना चाहिए. मतलब वो भी हर बॉक्स 4 बाइट्स का होना चाहिए. आई होप एवरीवन एग्री. ओके, अगेन आई एम रिवाइजिंग हियर. malloc फंक्शन रिटर्न वॉइड कर रहा है. ओके, तो यहाँ पे जस्ट कॉन्सेंट्रेट में क्या बोल रही हूँ? malloc फंक्शन इज यूज टू अलोकेट द मेमोरी डायनामिकली. मतलब रन टाइम नोड क्रिएशन का काम malloc फंक्शन करेगा इन सी लैंग्वेज. बट कितनी साइज का नोड बनाना है? साइज ऑफ ऑपरेटर बताएगा. कितनी साइज का? जितनी साइज स्ट्रक्चर की है. इसलिए यहाँ पे malloc साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड. किसको मेमोरी अलोकेट करनी है? न्यू नोड नाम के वेरिएबल को. ओके, और कितनी साइज है? जो स्ट्रक्चर की साइज है, मतलब उस पॉइंटर की भी साइज क्या होनी चाहिए? उतनी होनी चाहिए. दैट्स व्हाई डेटा टाइप ऑफ दैट वेरिएबल इज स्ट्रक्ट नोड. ओके, बट मैंने यहाँ पे बोला malloc के पहले void आता है, मतलब देयर इज नो रिटर्न टाइप. बट यहाँ पे देखो वी आर डूइंग टाइप कास्टिंग. इसको बोला जाता है, दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड एज टाइप कास्टिंग.
इसको क्या बोला जाता है, टाइप कास्टिंग मीन वर्ड को हमने क्या किया, टाइप कास्ट कर लिया है, मतलब वी आर गोइंग टू चेंज the data type of that variable. Okay, struct node star new node equal to struct node star malloc size of struct node. Okay, this statement is very important, you have to clear the meaning of it. Okay, so I hope everyone clear malloc का रोल क्या है, कितनी साइज अलोकेट करनी है, किसको अलोकेट करनी है न्यू नोड नाम के वेरिएबल को, और कितनी वो बताएगा malloc. Clear to everyone? Okay, so this is a concept of malloc function in C language. Okay, and जैसे फर्स्ट वाला empty box बनेगा, आफ्टर दैट ऐसे ये स्टेटमेंट से ही ये बॉक्स बनने वाला है, खाली बॉक्स, जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाया. अगेन आई एम राइटिंग हियर दिस बॉक्स. ओके, ये empty बॉक्स हमें कब मिलेगा, ये empty